Hello everyone, I am Anjula from SVM Malerkotla. Today my topic is insurance principles. Firstly, I want to tell what is an insurance. Insurance is a form of risk management used as a safeguard against risk of potential financial loss. Basically, insurance is a technique which distributes the loss of one person among many. एक पर्सन के लॉस को बहुत सारे पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस. नाउ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स. फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. टू पुट इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन ही वाज बिफोर द लॉस. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस का पर्पस इंश्योर्ड को वापस उसी सिचुएशन में लेके जाना है जिस सिचुएशन में वो लॉस से पहले था. सपोज आई हैव अ कार एंड इट इज इंश्योर्ड वर्थ ₹20,000. नाउ इट इज डैमेज्ड एंड देयर इज अ लॉस ऑफ ₹10,000. Now the insurance company will pay only ₹10,000, not ₹20,000, as insured is not allowed to get any profit out of the insurance because the purpose is to cover the loss, not to earn the profit. That is principle of indemnity. Second principle, utmost good faith. All the disclosures to be made and it should be done in good faith. According to utmost good faith principle, both the parties, that is insured and the insurer, must disclose all the facts and informations related to the subject matter of the insurance. For example, a person gets a life insurance policy worth ₹10 lakh and he is suffering from tuberculosis or heart disease, and within 2 or 3 months he died. Now insurance company can reject the claim because he didn't disclose about his disease, and this thing applies on insurer also. The insurer must disclose all the facts related to the subject matter of the insurance. For example, कोई पर्सन है, उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको ये मना कर रही है कि जिस हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट लिया वो हॉस्पिटल उनकी पॉलिसी के कवरेज एरिया में नहीं आता. दिस इज नॉट फेयर. इंश्योरेंस कंपनी को मींस इंश्योरर को पहले ही ये क्लियर कर देना चाहिए था कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट है वो उनके कवरेज पॉलिसी के अंडर आते हैं. Third principle, insurable interest means insured should have some monetary interest in the property. Means in the event of damage to the property, the concerned person has to face economic losses. For example, I have a car and if it is damaged, then I have economic loss. So I can say that I have insurable interest in that car and I can get it insured. Next principle is proximate cause. Only those perils which are mentioned in the policy should be covered. There are 2 types of perils: insured perils and uninsured perils. The insurance company pays the claim for the losses which are due to insured perils. Means इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जिन perils को मेंशन किया गया है, अगर इंश्योर्ड को उन perils की वजह से losses होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी. बट समटाइम्स द लॉस इज ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज. बहुत सारे कारण हैं, आप उस टाइम ये डिटरमिन करना मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन whether the claim is payable or not, कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करे या ना करे. In that case, the most closest or prominent cause is find out. For example, किसी पर्सन ने शिप का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या मेंशन किया गया था कि अगर शिप के अंदर जो गुड्स हैं
उसको वाटर की वजह से कोई लॉस है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, बट जो गुड्स था वो रैट्स ने स्पॉइल कर दिया तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम पे नहीं करेगी। लेकिन अगर शिप में रैट्स ने होल्स कर दिए और उस होल्स में से वाटर एंटर कर गया, उसकी वजह से गुड स्पॉइल हो गया, तब उस केस में प्रॉक्सिमेट कॉज ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि रैट्स ने होल्स किए, उसकी वजह से वाटर एंटर कर गया और गुड्स क्या है, डैमेज हो गया। तब उस केस में कंपनी प्रॉक्सिमेट कॉज के बेस पे क्लेम पे करेगी। Next principle is subrogation. According to principle of subrogation, after amount is paid, property will be owned by insurer. Means, if the insurance company pays the claim for the loss, then it becomes the owner of the property. Suppose I have a car and it is insured worth rupees 2 lakh and the car is totally damaged and the insurance company has paid the full claim. Now the insurance company becomes the owner of my car. It can sell the car. That is the principle of subrogation. Means जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम पे कर देती है तब उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योर्ड का कोई राइट नहीं है, उसके सारे जो राइट्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को चले जाते हैं। अब वो चाहे उस क्रैप को सेल करे या जो भी इंश्योरेंस कंपनी को ठीक लगता है वो उसको कर सकती है। और एक एग्जांपल है, जैसे किसी पर्सन ने थेफ्ट इंश्योरेंस कराया और वो कार चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पूरा का पूरा क्लेम पे कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो कार उसको मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंश्योर्ड है वो उस कार को अपने पास वापस रख लेगा, क्योंकि अब उसका उस कार के ऊपर कोई राइट नहीं है। अब उसके सारे राइट्स क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मींस 2 or more insurer, each one will pay in the proportion decided. If a person gets an insurance policy more than 2 companies and if there is a loss, then the insured cannot get the claim amount from all the companies. In fact, the claim will jointly paid by all the companies. For example, एक पर्सन ने अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस 3 इंश्योरेंस कंपनी से करा लिया, ABC, एक से 1 लाख का, एक से 2 लाख का और एक से 3 लाख का। नाउ सपोज देयर इज अ लॉस ऑफ 15,000 रुपीज। तो ऐसा नहीं है कि वो हर कंपनी से ABC से 15,000 चार्ज करेगा या हर कंपनी उसको 15,000 पे करेगी। इनफैक्ट तीनों कंपनीज उसको मिलके टोटल 15,000 ही पे करेंगी उस रेशो में जिस रेशो में उसने इंश्योरेंस कराया था। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। मीन्स इंश्योर्ड शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। इंश्योर्ड को अपनी प्रॉपर्टी को लॉस से बचाने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इट इज इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द क्लेम। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि चाहे इंश्योरेंस कराया हुआ है फिर भी वो हर पॉसिबल एफर्ट करे ताकि लॉस ना हो या लॉस को कम किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फायर इंश्योरेंस कराया अपनी फैक्ट्री का एंड द फायर अकर्स बट आई डिडंट डू एनी एफर्ट टू मिनिमाइज द लॉस बिकॉज इट इज इंश्योर्ड। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि हर कोशिश करे इंश्योर्ड पर्सन कि लॉस ना हो या लॉस कम हो। That's all for today. Thank you.